کہ اسلام کے اندر تزکیہ نفس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شمس کے اندر آپ پڑھیں گے شروع کی کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اس بات کو بیان فرمایا کہ جو آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، جو آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، جو آدمی اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیتا ہے، ایسا شخص کامیاب ہونے والا ہے۔ اور جو آدمی اپنے نفس کو پاک اور صاف نہیں کرتا، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، ایسا آدمی ناکام ہونے والا ہے، ایسا شخص نامراد ہونے والا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ اسلامی بھائیوں، جو آدمی اپنے نفس کو اس بات کا پابند بنا دے کہ اس کا نفس خیر کی طرف جائے، اس کا نفس اس کو بھلائیوں کی طرف لے کر کے جائے، اس کا نفس اس کو نیکیوں کی طرف لے کر کے جائے، اپنے نفس کی شر سے، برائیوں سے، گناہوں سے حفاظت کرے، تو ایسا انسان کامیاب ہونے والا ہے۔ لیکن جو انسان اپنے نفس کی حفاظت نہیں کرتا ہے، نفس کو گناہوں کے پیچھے چلتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، بے حیائیوں کے پیچھے چلتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، اپنے نفس کو شہوات اور خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہوا چلتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، اپنے نفس کی حفاظت نہیں کرتا، ایسا انسان ناکام ہونے والا ہے، ایسا آدمی نامراد ہونے والا ہے، ایسا آدمی فلاح اور کامیابی پانے والا نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو یعنی نفس کا تزکیہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفس کا حق بتایا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس لیے نفس کے اصلاح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، نفس کا تزکیہ کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نفس اللہ کے دین کے مطابق جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، ہمارا نفس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے کہ نہیں ہے، ہمارا نفس اللہ کے بتائے ہوئے دین پر ہے کہ نہیں ہے، یا اس راستے سے اتر چکا ہے، ہٹ چکا ہے۔ یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ انسانوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، انسانوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، تو اس وقت دنیا کے اندر بہت ساری گمراہیاں تھی، بہت ساری بے حیائیاں تھی، بہت ساری برائیاں لوگوں کے اندر رائج تھی، اور ان برائیوں پر لوگ عمل کر رہے تھے، چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے بھیجا، لوگوں کو گناہوں سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے بھیجا۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے انہی کے اندر ایک ایسے رسول کو بھیجا، ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور ان کا تزکیہ کرتے تھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں دے کر کے بھیجا تھا، انہی میں سے ایک ذمہ داری جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، وہ ذمہ داری تزکیہ نفس کی تھی، وہ ذمہ داری تزکیہ نفس کی تھی، نفس کو پاک اور صاف کرنے کی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو برائیوں سے، گناہوں سے، بے حیائیوں سے ایسا پاک و صاف کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا ایسا تزکیہ کر دیا کہ لوگوں کی زبانیں پاک اور صاف ہو گئی، لوگوں کے دل پاک اور صاف ہو گئے، لوگوں کے اخلاق و کردار اور معاملات
साफ सुथरे हो गए, लोगों का अकीदा साफ और शफाफ हो गया। जो लोग शिर्क के अंदर मुब्तला थे, अल्लाह की इबादतों में गैरों को शरीक किया करते थे, शिर्क के बदले में, शिर्क की जगह में उनके यहाँ तौहीद आ गई थी। और तौहीद ये सबसे पहली चीज है, सबसे बड़ी चीज है, जिसके जरिए नफ्स का तज़किया किया जाता है, जिसके जरिए नफ्स को पाक और साफ किया जाता है। और शिर्क सबसे बड़ी चीज है, सबसे गंदी चीज है, जिसके जरिए से आदमी अपने नफ्स को गंदा कर लेता है, आदमी अपने नफ्स को जो है तबाह और बर्बाद कर लेता है। इसलिए कि शिर्क अगर इंसान के अंदर है, इंसान का नफ्स शिर्क के अंदर मुब्तला है, तो शिर्क ये वो गुनाह है जो इंसान के सारे अमाल को बर्बाद कर देगा। अल्लाह ने फरमाया, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी, आपकी तरफ और आपसे पहले भी जो अंबिया गुजर चुके हैं, उनकी तरफ भी इसी बात की वही की गई थी कि अगर तुमने अल्लाह के साथ शिर्क किया, अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल भी ज़ाय हो जाएंगे, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कई अंबिया का तज़किरा करने के बाद फरमाया, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, कि अगर ये अंबिया भी शिर्क करते तो इनके अमाल भी बर्बाद हो जाते। अंबिया के बारे में बताइए, जिन पैगंबरों को, नबियों को अल्लाह ने तौहीद का पैगाम देने के लिए भेजा था, शिर्क से रोकने के लिए भेजा था, अल्लाह ने उन नबियों के बारे में जब ये बयान फरमा दिया कि अगर ये नबी भी शिर्क करते, इनसे शिर्क हो जाता, तो अल्लाह ताला इनके भी अमाल को बर्बाद कर देता, इनकी भी नेकियों को बर्बाद कर देता। तो बताइए, अगर आज कोई इंसान है, कोई मुसलमान है, इस्लाम का दावा करता है, लेकिन वो अल्लाह की इबादत में गैरों को शरीक कर रहा है, गैरों को मिला रहा है, ऐसे लोगों की नेकियां भी ज़ाय हो जाएंगी, ऐसे लोगों की नेकियां भी बर्बाद हो जाएंगी। इस्लामी भाइयों, इंसान के अंदर जितनी खालिस तौहीद होगी, उतना ही ज्यादा इंसान का नफ्स पाक और साफ होगा। इंसान के नफ्स के अंदर अगर तौहीद है, खालिस तौहीद, उस तौहीद के अंदर शिर्क की मिलावट नहीं है, तो इंसान का नफ्स उतना ही ज्यादा पाक और साफ होगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से, शिर्क से नहीं मिलाया, अमनो सलामती, शांति इन्हीं के लिए है, और यही लोग हिदायत याफ्ता है। तो इस्लामी भाइयों, जितनी खालिस तौहीद होगी, उतना ही ज्यादा इंसान का नफ्स पाक और साफ होगा। इस्लामी भाइयों, इसी तरीके से नफ्स को पाक और साफ करने के लिए, नफ्स का तज़किया करने के लिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करना है, इसलिए कि दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा महबूब है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, और दुआएं भी अहम तरीन इबादात में से हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का वादा किया है, इस बात का ऐलान किया है कि मेरा बंदा अगर मुझसे किसी चीज़ का सवाल करेगा, मेरा बंदा अगर मुझसे किसी चीज़ को मांगेगा, मेरा बंदा अगर मुझसे दुआ करेगा, तो मैं अपने उस बंदे को मायूस नहीं करूँगा, मैं अपने उस बंदे की दुआ को रद्द नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमाऊँगा। मेरा बंदा जो चीज़ मुझसे मांगेगा, मैं अपने बंदे को वो चीज़ अता फरमाऊँगा। कुरान हकीम में अल्लाह ने फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने ये कहा है, तुम्हारे रब ने ये ऐलान किया है कि ऐ लोगों, तुम मुझसे दुआ करो, मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। ऐ लोगों, अल्लाह से तज़किया नफ्स की दुआ करो। तज़किया नफ्स ये बहुत बड़ी चीज़ है। तज़किया नफ्स को अपनी दुआओं के अंदर मांगा करो। नफ्स के पाक और साफ करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं किया करो। और खुद इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आपने ये दुआ सिखलाई है कि इंसान अपने नफ्स के तज़किया के लिए दुआ करे। अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे,
अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तकवाहा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को तकवा अता फरमा, वज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा, अल्लाह मेरे नफ्स को पाक कर दे, साफ कर दे, मेरे नफ्स का तज़किया कर दे। अल्लाह तू बेहतरीन पाक और साफ करने वाला है, अल्लाह तू बेहतरीन तज़किया करने वाला है। अंत वलीयुहा व मौलाहा, अल्लाह ताला तू मालिक है, तू मौला है, तू सरपरस्त है। तज़किया नफ्स की दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है। इस्लामी भाइयों, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से तज़किया नफ्स की दुआ करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना है तज़किया नफ्स को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम गरीब हैं, हम फकीर हैं, हम मुहताज हैं, हम कमजोर हैं। अल्लाह ताला हम अपने नफ्स का तज़किया नहीं कर सकते, सारी ताकतें तेरे पास है, सारे खजाने तेरे पास है, सारी कुव्वत तेरे पास है, जमीन और आसमान के सारे खजाने अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे पास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू ताकतवर है, अल्लाह ताला तेरे जो है तमाम का तमाम मामला तेरे हाथों में है, सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला तेरी मशीयत के ताबे है। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, अल्लाह ताला तू जिसको चाहे पाक करेगा, तू जिसका चाहेगा अल्लाह तज़किया करेगा। अल्लाह ताला तू हमारा भी तज़किया कर दे, अल्लाह तू हमें भी पाक और साफ कर दे, गुनाहों से बेहयाइयों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा भी तज़किया फरमा दे। ये दुआ सिखलाई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तज़किया नफ्स की दुआ लिहाजा हमें करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तज़किया नफ्स की दुआ का एहतमाम करना चाहिए। इस्लामी भाइयों, इसी तरीके से हमें मौत को याद करना है। मौत को याद करना, इससे भी क्या है, इंसान के दिल के अंदर बेदारी पैदा होती है और इंसान का दिल खैर की तरफ, भलाइयों की तरफ माइल होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ाति अल मौत, ऐ लोगों लज्जतों को तोड़ देने वाली, खत्म कर देने वाली मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो। मौत को याद करने में बड़ा अजीम फायदा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करने के लिए कहा है। मौत को याद करना है और मौत से पहले का ये जो वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, इसको गनीमत समझना है, इसको नेकियों में गुजारना है, खैर के कामों में गुजारना है, भलाइयों में गुजारना है, आमाले सालिहा को अंजाम देने में गुजारना है, गफलत से काम नहीं लेना है। इसलिए कि मौत कब आ जाएगी, किस वक्त आ जाएगी, किसी को ये नहीं मालूम, किसी को ये नहीं मालूम। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किस जमीन में इंसान की मौत होगी इंसान को नहीं मालूम, इंसान को नहीं मालूम। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुमको आकर के पकड़ लेगी, मौत तुमको दबोच लेगी। मौत का एक वक्त अल्लाह ने मुतय्यन किया है, वो मुतय्यन वक्त जब आ जाएगा तो मौत एक लम्हे भी ताखीर नहीं करेगी, या इसी तरीके से मौत एक लम्हे पहले भी नहीं आएगी। जो वक्त मुतय्यन है उसी मुतय्यन वक्त में इंसान की मौत आएगी, और मौत के बाद की जो जिंदगी है उसमें इंसान को अमल करने का मौका नहीं मिलेगा। अमल करने का जो मौका है मौत के साथ वो खत्म हो जाएगा। इस्लामी भाइयों, इसलिए दुनिया के अंदर ये जो जिंदगी अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, मौत को याद करते हुए हम अपनी आखिरत की तैयारी करने की फिक्र करें, और ये ना सोचे कि अभी मौत के आने में कई साल और कई एक लंबी मुद्दत पड़ी हुई है। बहुत सारे लोग इस धोखे में पड़े होते हैं, इस गफलत के शिकार होते हैं। इस्लामी भाइयों, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से निकलते हैं लेकिन घरों से वापस नहीं आते हैं। सुबह करते हैं, शाम करते हैं, लेकिन उनको फिर सुबह करने की तौफीक नहीं मिलती है, इसलिए कि उनकी मौत आ जाती है। एक कपड़ा, एक लिबास आदमी पहनता है, दूसरा लिबास जो घरों के अंदर रखा हुआ है वो पहनने की तौफीक नहीं होती है, और उसके बाद इंसान को गुस्ल दिया जाता है। इंसान ने जो लिबास पहना था उस लिबास को उसको जो लोग गुस्ल दे रहे होते हैं उस मैयत को,
ایسے لوگ اتارتے ہیں اور ایسے لوگ اس کے لباس کو نکالتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، تو موت کو ہمیں یاد کرنا ہے، آخرت کو یاد کرنا ہے۔ آخرت کو یاد کرنے سے انسان کے دل کے اندر ایک فکر پیدا ہوتی ہے آخرت کی تیاری کرنے کی، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی، نیکیوں کی طرف جلدی کرنے کی۔ تو اس لیے موت کے ذریعے سے اپنے نفس کا تزکیہ کیا جائے، اپنے نفس کو نیکیوں کی طرف لے کر کے جایا جائے۔